10, 11, 12. That is why you must have to concentrate properly so that you will become perfect, especially in mathematics. Concentration is required in class 9. If you will do better in class 9, you will do better in class 10, 11, 12. And before starting the solution of the questions, just we will discuss the questions of the NCERT exercise 2.4. Okay, I have given the detail of the properties, formulas, factor theorem, remainder theorem, different types of polynomials, zeros as well as roots in my previous videos. Okay, if these are not clear to you, please see my previous videos at my channel Math Success Point. You will get the detail of it and you will understand, because each and every exercise is correlated with the properties, different types of properties, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, as well as different other things, factor theorem as well as remainder theorem. Everything I will use over here. I will use zeros of the polynomial also. Zeros as well as roots of the polynomial, both are same but a little difference is there. मैंने डिफरेंस के लिए भी मैंने वीडियो डाली थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोज एंड रूट्स ऑफ द polynomial. Okay, that is why my dear student, be careful and let us start the solution of the question. Question number 1 I am taking, it is given over here, determine which of the following has a factor. Let me see, determine, first of all you try to understand the question. Determine x plus 1 is a factor of polynomial. First I am taking different polynomials. I will take, suppose it is to be denoted by px and it is required x to the power 3. This is a cubic polynomial. I told you already, having the degree 3, that is why it is a cubic polynomial. And you must have to see it is a factor or not. In detail I have discussed. मैंने फैक्टर थ्योरम में और रिमाइंडर थ्योरम में दोनों चीजों में ही इसको मैंने डिटेल इसका डिस्कस किया। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, देखिए इसकी डिग्री 1 है। ओके, इसकी जीरोज क्या होगी? देयर विल बी 1 जीरो ओनली। लीनियर में केवल एक जीरो होती है, 1 जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देयर विल बी 2 जीरोज और क्यूबिक पॉलिनोमियल देयर विल बी 3 जीरोज। 3 वैल्यूज ऑफ एक्स, 2 वैल्यूज ऑफ एक्स and here will be 1 value of x. तो कैसे निकालेंगे? देखिए मैं निकाल देता हूं द जीरो ऑफ पोलिनोमियल. व्हाट पोलिनोमियल? पोलिनोमियल x plus 1 will be equal to 0, x is equal to -1. Only -1 is the zero of this polynomial, linear polynomial. Okay, now let me find out. You put in place of x, that is 1, -1 in place of x, -1 to the power 3 plus -1 square plus -1 and plus 1. Okay, you see, if you are taking the negative number, its power is odd number, its value will be in negative. -1 to the power 3, that is -1. -1 to the power 2, power is even, that is why it will be positive. Okay, and here positive into negative term, that will be -1 and plus 1. Okay, that is why you see how many positive numbers are there? 1 plus 1, that will be 2 minus 2, it will be 0. That is why my dear student, p minus 1 you got 0. In factor theorem as well as in remainder theorem I told you, मैंने बताया है वहां पर, यदि यहां पर p minus a की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1, pa will be equal to 0, तो क्या होगा? x plus a will be the factor of it. a के स्थान पे क्या है? 1, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर 0 आ गया ना, तो मैं क्या करूंगा? x plus 1 is a factor of px थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने px लिख दिया। px की वैल्यू इसका फैक्टर है ये, वही देखिए x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस, लेट मी राइट इट, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये जो x प्लस 1 है इसका फैक्टर है, इसके अंदर है ये, जब फैक्टराइज करेंगे ऑटोमेटिकली यूज रहेगा। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट मी टेक द सेकंड पार्ट ऑफ इट। सेकंड पार्ट में देखिए भाई क्या है, उसमें हमको क्या करना है? पोलिनोमियल उसने चेंज कर दिया, पोलिनोमियल चेंज किया है बस, दैट इज x to the power 4 plus x to the power 3 plus x square plus x और plus 1। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ x विल रिमेन सेम बिकॉज
दिस लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 0, 1 0 किस लिए -1 होगा, तो इसमें -1 + 1, तो वही p -1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, जैसे मैंने बता भी दिया आप लोगों को p -1 इट विल बी इक्वल टू x के स्थान पे क्या रखोगे -1 + 1, दैट इज व्हाई इट इज 0। ओके, दैट इज व्हाई -1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसी से हम लोग चेक करेंगे। चलिए अब इसमें चेक कीजिए भाई, इसकी वैल्यू निकालिए, बताइए इसमें क्या होगा। इसमें p -1 की वैल्यू बता दीजिए। -1 के स्थान पे x के स्थान पे -1 रखना है और कुछ नहीं करना, -1² प्लस और फिर -1 और फिर +1। ओके, देखिए पावर 4 है हमारे पास में, इवन पावर है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ओड पावर है तो नेगेटिव हो जाएगी, इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी और फिर ये ओड है तो नेगेटिव हो जाएगी, +1 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब कितना आ गया भाई, टेल मी इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू, लेट मी राइट इट हियर इटसेल्फ, दैट इज देखिए पॉजिटिव 1 + 1 + 1 3 और -2, that is equal to 1, it is equal to 1, that is why what you will say, भाई आपके पास रिमाइंडर आ गया ना, इससे हम रिमाइंडर भी बोलते हैं, रिमाइंडर। जब आप देखिए यहां पर, जब इस पॉलिनोमियल को आप x + 1 से डिवाइड करोगे ना, यू विल गेट रिमाइंडर 1 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। ओके, इससे हम रिमाइंडर भी निकालेंगे, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में और इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट द एक्चुअल डिवीजन बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, यू विल फाइंड आउट द रिमाइंडर। ओके, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, बिल्कुल इजीली आपके समझ में आ जाएगा। ओके, दैट इज व्हाई इट्स वैल्यू इज, तो क्या करेंगे हम, ये फैक्टर थोड़ा ही हुआ, ये फैक्टर ही नहीं है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर x + 1 is not a factor of px. Px means this one, px, x to the power 4 plus x to the power 3 plus x² plus x और +1। ओके, px लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल लिख दिया, ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस, लेट मी टेक सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं यहां पर, देखो फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट ले लेता हूं मैं, लेट मी टेक फोर्थ पार्ट। देखिए पॉलिनोमियल, देखिए भाई क्या है, व्हाट इज द पॉलिनोमियल px इन द फोर्थ पार्ट। लेट मी राइट x to the power 3 minus x², देखिए, और -2 + √2। ओके, दिस इज x एंड +√2। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, कुछ नहीं करना है, जहां पर x है वहां पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, लेट मी रिमूव। जहां भी x है -1 to the power 3 -1² और -2 + √2, और यहां पर -1 ये है भाई +√2, तो x के स्थान पे आप -1 लिखेंगे, -1 to the power 3 पावर ऑड है -1, यहां पे माइनस पावर इवन है +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा +1, और ये देख लीजिए भाई, और माइनस, अब इसमें क्या है देखिए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, √2 भी आ गया और +√2 आ गया, ये 2 है केवल। ओके, एंड +√2, यू सी, देखिए इसमें यहां पे देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया भाई, -2 ये हो गया, पॉजिटिव 2 हो गया, नेगेटिव मैंने बता दिया पॉजिटिव। ओके, +√2 +√2 2√2, ये तो कैंसिल हो गया, 2√2, फिर क्या आ गया, फिर ये वही आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया ना, दैट इज व्हाई यू सी केयरफुली, दिस इज द रिमाइंडर। तो क्या बोलेंगे आप, यू मस्ट हैव टू राइट x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px लिख देता हूं क्योंकि काफी लंबी ये है आपके पास में, दैट इज व्हाई यू सी इट इज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 हो जाता तो क्या हो जाता, ये इसका फैक्टर हो जाता, ठीक है, but it is not equal to 0, that is why x + 1 is not a factor of px is here my dear student, that is why you see carefully। let me take some more questions which are very important। question number 2, एक दो पार्ट बताऊंगा मैं so that you will understand। let me take some parts in question number 2 from your NCERT book, I am discussing the questions। question number 2, see carefully, use the factor theorem। factor theorem आपको यूज करनी है, use factor theorem।
फैक्टर थ्योरम यूज करके क्या निकालना है भाई बताइए? डिटरमाइन क्या निकालना है आपको? वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px और नॉट, वेदर gx में लिख लेता हूं, एक पार्ट में लिख लेता हूं, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में लिख लीजिए gx, देखिए काफी लंबी पॉलिनोमियल दी हुई है 2x टू द पावर 3, gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ये px है भाई, px दिया हुआ है px, लेट मी राइट px इज 2x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर। अपनी किताब में देखते रहिए आप, एनसीईआरटी की किताब सबके पास है -1, ठीक है? एंड gx देखिए आप लोग, gx क्या है भाई? इसी तरह का क्वेश्चन मैंने अभी बताया, यहां पे लिखा हुआ है फाइंड बाय द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर px इज ए फैक्टर ऑफ gx और नॉट। यू विल हैव टू डिटरमाइन दिस थिंग। अभी वही तो मैंने डिस्कस किया था, वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, बस आपको ये निकालना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर कब निकालेंगे? ये मैंने फैक्टर थ्योरम में भी बताया हुआ है, वहां पे ए लिया था ना हमने, x प्लस ए दैट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, ओके? लिया था ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी? -a, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी बताइए? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, चूंकि px की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी तो इसकी वैल्यू आएगी, तो x इज इक्वल टू -1 यू विल हैव टू टेक इन प्लेस ऑफ a, ओके? चलिए यहां पर अब देखिए फैक्टर थ्योरम से ही निकालूंगा मैं। फैक्टर थ्योरम क्या है हमारी? सबसे पहले वैल्यू निकाल दीजिए px की वैल्यू देखिए भाई क्या है? 2x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 12। मैं फिर से लिख रहा हूं सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज, x की स्थान पे आप लोग -1 रख लीजिए, 2 -1 टू द पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर और -2 -1 एंड -1। चलिए दैट इज क्यूब, मैंने पहले ही बता दिया, माइनस नेगेटिव नंबर की पावर ओड नंबर होने से क्या होगा? वैल्यू विल बी नेगेटिव, तो -1 into 2 -2 and that will be 1, power is even, negative into negative term will be positive term and -1। देखो भाई -3 हो गया +3 हो गया, कितना हो गया भाई? 0 हो गया ना। अभी मैंने बताया था आप लोगों को रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम क्या है? इफ pa is equal to 0 then x minus a is a factor of polynomial px, बस ये रखना है भाई, ठीक है? हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया ना। ये तो मैंने कंडीशन लिखी है, ठीक है ना? x प्लस a, ठीक है? x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ इट px। लेकिन हम क्या करेंगे? pa की वैल्यू 0, ठीक है भाई? हम यहां करेंगे, देखिए यहां पे क्या आ गई हमारे पास वैल्यू? p -1 इज इक्वल टू 0, सो देन व्हाट विल हैपन? x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। व्हाट इज px? px लिख देता हूं क्योंकि काफी लंबा है ये, लिख लेना आप लोग px 0 then x plus 1 is a factor of this one, ओके? ये इसका फैक्टर है। और यदि यहां पे 0 नहीं आता, ये 0 नहीं आता, तब क्या करते हैं? फैक्टर नहीं होगा by the using the factor theorem, ओके? दिस थिंग यू मस्ट हैव टू, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक कंडीशन भी लिख दी यहां पर। सेकंड कंडीशन है यदि x plus a is the factor of px then pa will be equal to 0, ठीक है भाई? a की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, व्हाटएवर इट, दैट इज ए रियल नंबर ओनली। रियल नंबर क्या होता है? सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, दीज आर रियल नंबर। सारी चीजें मैंने यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट पर डाली हुई है, नंबर सिस्टम भी मैंने डाला हुआ पूरा का पूरा डिटेल, तो उसको देखिए आप, समझिए, तो सारी चीजें आपके समझ में आती हुई चली जाएंगी, ठीक है? चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसमें देखता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 3? सारी चीजें हम फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट बताता हूं मैं, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है भाई। कैसे निकालनी है k की वैल्यू? इफ x minus 1 is a factor
x minus 1 is a factor of px. px क्या है भाई, देखेंगे अभी px क्या है. ओके, चलिए भाई फर्स्ट पार्ट में है px क्या है, इज इक्वल टू, लेट मी टेक x स्क्वायर प्लस x प्लस k, दिस इज px. सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया भाई आपको, इफ x माइनस 1, ये फैक्टर दिया हुआ है. ओके, सॉल्यूशन में x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. px का फैक्टर है, px इज दिस वन, px ये है यहां पर, ये इसका फैक्टर है, इसलिए ये गिवन है. सो व्हाट विल हैपन, p that will be, let me write p1 x minus 1 is equal to 0 implies that x will be equal to 1. x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना. 1 is the zero of this polynomial. इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकता हूं मैं, 1 is a zero of polynomial. कौन सा पोलिनोमियल, x माइनस 1 रखा ना पोलिनोमियल, 1 माइनस 1 रखोगे 0 आ जाएगा, तो p जो पोलिनोमियल इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. ओके, लेट मी टेक नाउ, इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट 1. ओके, p1 कहां पर रखोगे, यहां पर रखोगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, बट p1 विल बी इक्वल टू 0. p1 ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इफ this is a factor, x minus 1 is a factor of px, then what will happen, then यही लिख देता हूं, then p1 will be equal to 0. p1 because 1 तो मैंने इसलिए बता दिया यहां पर, 0 of the polynomial, this one is 1, this one is 1 is the 0 of the polynomial, this polynomial. Okay, that is why you write, इसकी वैल्यू तो कितने आ जाएगी, 0. p1 is 0 is a factor, it is already given, ये फैक्टर है, तो p1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना जब इसका फैक्टर है, तो वही मैंने वैल्यू लिख ली इसकी 0. 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस k, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस k, और k की वैल्यू दैट इज -2. इफ k इज इक्वल टू -2 देन x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ इट. ओके, k की वैल्यू आप 2 रख लीजिए, फैक्टर इसका होगा ही होगा. ओके, लेट मी टेक डिफरेंट क्वेश्चंस यू कैन टेक. ओके, सेकंड पार्ट ले लेते हैं, चलिए सेकंड पार्ट भी ले लेते हैं जिससे आपकी और समझ में आ जाए. चलिए भाई, उसी तरह से निकाल देंगे आप 0. सेकंड पार्ट देखिए भाई क्या है, px 2x स्क्वायर माइनस प्लस kx एंड प्लस 2 रूट 2. ओके, ये तो इसका फैक्टर है ही ऑलरेडी, ये तो यहां पे दिया हुआ है, x की वैल्यू 1 होगी. 1 इज द 0 ऑफ द दिस पोलिनोमियल x माइनस 1. ओके, इट इज ए 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, केवल पोलिनोमियल लेनी है, ये पोलिनोमियल लेनी है. देयरफॉर px मैं लिख देता हूं 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस रूट 2. ठीक है भाई, अब मुझे यहाँ पे p के स्थान, x के स्थान पे -1 लिख देना है. 2 -1 स्क्वायर प्लस k -1 और प्लस रूट 2, ये वैल्यू लिख देंगे. ओके, चलिए भाई, ये तो 0 हो गई ना, मैंने पहले ही बता दिया p-1 इज 0. ओके, p1 नॉट -1, इट इज 1, क्योंकि 1 तो 0 है ना इसका, 1 इज द 0, तो 1 0 है तो 1 ही रखेंगे. p1 रखेंगे भाई, नॉट नेगेटिव है. ओके, तो ये आपकी कितनी आ गई वैल्यू, 2, और ये कितना आ गया, प्लस k एंड प्लस रूट 2. ओके, अब k की वैल्यू कितनी आ गई, ये दोनों वैल्यू 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2. लेट मी टेक इट फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड. ओके, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, 2 प्लस रूट 2 विल बी इक्वल टू k. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू इतनी आ जाएगी भाई, देख लीजिए, k की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. ओके, दैट इज व्हाई if k is equal to this one, then x minus 1 is a factor of this polynomial. Okay, in detail I am telling you. Let me take some more parts. I have taken the fourth part of this one, not fourth part, I have taken the second part मैंने लिया था. Different, all the parts are likely to be same. Okay, that is why you see carefully. Let me take one more part of it. That is why you see. Let me take question number 4, because you will practice the other parts of it. Okay, practice make a man perfect. Without the practice nothing can be done. Let me take one part in question number 4, because very important question is given, that is factorize
factorize, what you will factorize? First part, 12x square minus 7x and minus 1. You will have to factorize it. Okay? How you can factorize? So many methods are there. There is one method for what? फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम से भी हम इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. तो फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे भाई? चलिए देखिए यहाँ पे इसका एक तो कांस्टेंट नंबर देख लीजिए आप. कांस्टेंट नंबर 12 इंटू 1, तो 12 हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं? देखिए फैक्टर थ्योरम से निकालेंगे तब तो हमको फैक्टर खोजने पड़ेंगे. ओके, फैक्टर थ्योरम से हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते. ठीक है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, इसमें डायरेक्ट दिया है, तो डायरेक्ट भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं. अब इसमें बताइए, ऐसा नंबर बताइए, यू विल हैव टू ब्रैकेट -7 इन सच ए वे सो दैट प्रोडक्ट तो 12 होना चाहिए. ठीक है, लेकिन सम कितना होना चाहिए? -7x. चलिए क्या होगा भाई? 4x - 3x और -1. ठीक है भाई, इसको देख लीजिए, ये +1 है भाई, दैट इज +1. ओके, दिस इज +1. -7x और -3x दैट विल बी -7x. प्रोडक्ट मैंने बता दिया 12 इंटू 1 दैट विल बी 12. ओके, और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा ना? यस. अब बताइए इसमें क्या चीज कॉमन है? 4 देखिए 4 इसके पास है, 4 यहां पर भी है, 4 ले लिया, और एक x यहां पर है, एक x ले लिया हमने, तो क्या बचेगा? 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 तो आपने बाहर ले लिया, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा ना, 3x. और यहाँ पे 4x आपने बाहर ले लिया तो -1 आ गया. ठीक है, यहाँ पर क्या चीज कॉमन लेंगे? -1 कॉमन बाहर कर दीजिए -1 को, लेकिन साइन चेंज हो जाएगी जब आप माइनस बाहर लोगे. x -1 साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव. ठीक है भाई, तो यहाँ 3x - 1 कॉमन है ना, दोनों में है. देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको ले लीजिए, तो कितना बचेगा? 4x - 1. ओके, दीज आर द फैक्टराइजेशन एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. These things you must have to keep in mind. These are the factorization. फैक्टर थ्योरम से भी हम इसके फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं. ओके, इसी तरह का एक क्वेश्चन और चाहे ले लीजिए आप, सारे बेसिस सेम ही है. फोर्थ पार्ट, लेट मी टेक द फोर्थ पार्ट ऑफ इट. फोर्थ पार्ट देखिए क्या है भाई, मैंने पहले बता दिया. आप इसको फैक्टर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे मैंने क्या किया? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मैंने फैक्टराइजेशन निकाले हैं. ये है आपका 3x² माइनस x और -4. इसके फैक्टराइजेशन आपको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मैं लिख देता हूं यहां पर, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. देखिए मिडिल टर्म यहां पे -x है. ओके, -1. x² का कोफिशिएंट कितना है? 3, और कांस्टेंट क्या है? 4. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 12 है. तो यहां पे इसको ऐसे ब्रेक करना है जिसका सम तो -x होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए. प्रोडक्ट मस्ट बी 12. तो उसमें क्या करते हैं हम? जनरली देखिए ये भी कर देते हैं, a + b तो -1 होना चाहिए, और a इंटू b कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए. देखो 4 इंटू 3 लिख देता हूं मैं, 3 इंटू 4 दैट विल बी 12. बस इतना याद रखिए. ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा? इसको स्प्लिट कर देता हूं. मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ जाएगा आपके. बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दिस प्रोसीजर आई एम जस्ट गोइंग टू टेक. चलो भाई बताइए, 3x² यू विल हैव टू टेक. ठीक है भाई, अच्छा जी. अब यहां पे -1 है. देखिए मैं क्या करूंगा? -4, 4 इंटू 3 12 होता है ना, दोनों का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए. ठीक है भाई, और सम कितना होना चाहिए? -1. वैसे -1 लिखते हैं, 1 रखने से भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है नेगेटिव साइन इसके साथ में ले. नेगेटिव साइन लेने की आवश्यकता नहीं है. तो कितना हो गया? 4x + 3x. बताइए इन दोनों का सम कितना हो गया? -x हो गया ना, -x. उसके बाद -4 यू राइट एज इट इज. ओके, लेट मी टेक. अब मुझे ये बता दीजिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? x इज कॉमन, x कॉमन है, x यहां भी है, बाकी इसके अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 3x बचेगा और -4 बचेगा. यहां पे बता दो क्या कॉमन है? 1, और 3x - 4 बचेगा. ओके, अब दोनों ब्रैकेट देखिए, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, नहीं तो आपका जो प्रोसीजर है दैट विल बी रॉन्ग. अब इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं, 3x - 4 और x + 1.
Okay, these are the factorization. By splitting the middle term, we have factorized it. Okay, that is why, my dear student, you must have to see the procedure. कुछ और एक दो पार्ट बचा है, you must have to practice.